अलाउ किया है मैंने। ओके हाँ चालेल स्टार्ट सर Started? Okay. Namo Namaha. Today we are going to see the yoga definitions, the various definition from scriptures. So yoga means what? Yoga means the root word is yuj. The yuj means what? Yuj means to join, yoke, to unite, the union of two different things in one venture or one place. Okay, so we are going to see that only. And why should we do योग? योग क्यों करना है, क्या कारण है योग करने का? योग का डेफिनेशन, योग मतलब क्या, योग क्यों करना है, ये हम लोग आज हमारे ये स्लाइड में देखने वाले हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाई योगा. So science solved all the problems of all the materialistic world with the invention, but couldn't solve the root cause of the psychosomatic disorders. They searched outside and made tremendous progress in the gross world, but they didn't solve the problem of root diseases. However, ancient sages, rishis, realized in their deep intuition, in meditation state, that these false linking of the self with the body mind complex was the root of the suffering. Where is the suffering? Suffering is inside, but we are finding or we are searching outward. Now our sages went inside with the deep intuition or meditation into the subtle world. This state is to be self-experienced, as this state is beyond the cognition of the senses. Now our sages had unlocked the keys of permanent happiness by removing bondage and misery forever. The key is yoga. The ultimate key is yoga. खुल जा सिम सिम, उस तरह से जो all the problems की जो चाबी है, वो चाबी अपनी योग है. So specific techniques were developed and were documented in scriptures, in granthas by our sages. Now what is meant by yoga? The definition जो अभी प्रियंका ने बताया, that is given in वेदांत दर्शन. वेदांत के द्वारा ऐसा बताया गया है कि आपके जीवात्मा और शिवात्मा का मिलन होना चाहिए. It implies the union of Atma and Paramatma. Jivatma means the individual soul and Shivatma means the supreme soul. The individual consciousness with the cosmic consciousness. That is the definition by Vedanta Darshan. अपने आत्मा को परमात्मा के साथ में मिलन करना, उसको एक ही दिशा में लेके जाना. मतलब क्या? तो मन, बुद्धि और आपका जो कर्म है, जो काम है, वो एक ही दिशा में, एक ही लाइन में लेके जाना. दैट इज योग. योगा वेरीली इन मीन्स, इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, मीन्स टू हैव द कन्विक्शंस that God does not reside anywhere outside, the dwells in one's heart only. The constantly, and one has to perpetuously aware of him. आपको अवेयरनेस जागृत करके उसको देखने की कोशिश करनी है, टूवर्ड्स इनसाइड, नॉट आउटवर्ड्स. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन बाय बृहत्याज्ञवल्क्य स्मृति. बृहत्याज्ञवल्क्य स्मृति. इट सेज वेरी ब्यूटिफुली, योगेन आत्मदर्शनम. टू नो योर ओन सेल्फ इज योग. That is, self is realized by the means of yoga. Every person is the combination of both the beast and the divine tendencies. If a person contemplates on the self ceaselessly, the beastly instincts are reduced and he becomes a true human being. See, the three instincts in us, beast instinct and the divine instinct.
बीच में कौन है? मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व एंड मनुष्यत्व। अगर मनुष्य जो है वो मनुष्य अगर भगवान के जैसे, देवत्व के जैसे काम करेगा, कंपैशन, लव, लोगों को मदद करना, लोगों को अच्छा सोचना, लोगों से अच्छी बातें करना, तो देवत्व आएगा। एंड द if you are doing some क्लिष्ट कर्म or bad work, you are something you are doing bad in society, किसी को मार रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, abusing, और you are looting some other authorities, anything, gold, money, anything, it kind of the literature also। आप लिटरेचर भी किसी का अगर चोरी करते हैं, किसी को टाइम दिया है 1 बजे का और आप 1 बजकर 10 मिनट के बाद आते हो, तो यू आर स्टीलिंग द टाइम ऑल्सो। तो दैट शुड नॉट बी पॉसिबल इन योग। यू हैव टू बी अवेयर टू योर ओन डीड्स। आपको अपने साथ में रह के अपने आप को जानने के लिए अवेयर रहना पड़ेगा। तो जो भी अच्छे काम आप करोगे तो यू विल गो टूवर्ड्स डिवाइन इंस्टिंक्ट। तो पशुत्व बनना है या देवत्व लाना है, या आपके ऊपर है। तो मनुष्यत्व ओनली यू, इन यू ओनली, और ये मनुष्यत्व ही कर सकता है। जैसे आहार, निद्रा, मैथुन। आहार, हम लोग भी खाना खाते हैं, प्राणी भी खाना खाते हैं। हम लोग भी निद्रा में है, वो भी निद्रा में है। हम भी मैथुन करते हैं, वो भी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है जो संभोग करते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस? We have the quality of awareness. You have to aware whatever you are doing in your whole day, the bad karmas or good karmas, you have to know. You have to introspect to your own self, what I did today. Whatever you are doing anything bad, tomorrow you have to compensate, or tomorrow you have to do good for that. Okay, this is the Brahad Yajnavalkya Smriti Yogena Atmadarshana. Now next is very popular, भगवद गीता की है, समत्वम योग उच्यते, that is योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। Means be steadfast in the performance of your duty, O Arjuna, abandoning attachment to success and failure. Such a equanimity is called you. To have equanimity for success and failure, it becomes imperative to have peaceful mind. अगर आपको हार्ड टाइम भी आता है, नाउ टुडे इज वेरी हार्ड टाइम, वेरी वेरी हार्ड लाइफ, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, लेकिन यू हैव टू स्टड फास्ट इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। आपका काम क्या है? वॉट एवर द ड्यूटीज गिवन बाय गॉड, whatever the duties given by your own family, you have to do it with awareness in a balanced state. जो भी रोल आपको दिया है, टुडे आई एम हियर फॉर अ टीचर, आई हैव टू डू वेरी वेल इन अ इक्वेनिमिटी स्टेट। अभी ये खत्म होने के बाद मेरा रोल चेंज हो जाएगा, मैं किसी का पिताजी हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, तो दैट रोल ऑल्सो आई हैव टू डू। सो दैट इज ओनली योगस्थ गुरु कर्माणि। आपको कर्म करना है, परफॉर्मेंस करना है, वो भी स्टड फास्ट होके, नॉट अटैच्ड विथ एनीथिंग।
we have to remove the root cause of the stress or the disorder. Then what is meant by yoga? Definition by Yoga Darshan, Vedanta Darshan, sorry. In Vedanta Darshan, there is a Atma to Paramatma. You have to join with or unite with together. That is given by Vedanta Darshan. Now the second is Brihad Yajnavalkya Smriti Yogena Atma Darshanam. You have to know your own self through yoga. That is Yogena Atma Darshanam. अगर आप अपने आप को जानते हो तो यू विल गेट योर ओन देवता और परमेश्वर का आपका जो अंश मात्र में हार्ट में आपके रह रहा है उसका आपको दर्शन होगा. नाउ द थर्ड वन हियर वी आर यू हैव टू, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मेरा नेटवर्क चला गया था और मैं बहुत ही कॉशियस हो गया था कि अभी कैसे करें क्या करें. असिद्ध सिद्ध योग सक्सेसफुल होगा या असक्सेसफुल होगा, यू हैव टू स्टे इन योर इक्वेनिमिटी. आपको बैलेंस स्टेट में रहना पड़ेगा. दैट इज अ योग. अगर अभी क्या है, आपको बैलेंस स्टेट में रह के यू हैव टू डू योर वर्क इन एक्सीलेंस स्टेट. दैट इज अ बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम. Whatever you are doing your work, given by God, given by your family, given by your destiny, you have to do it very properly with excellence, with good manner, with positive thought. कोई अकाउंटेंट है, कोई टीचर है, कोई क्या है, anything, you have to make it better, sorry, good, then better, and it is the best. That is a yoga karmasu kaushalam. Now I will ask you one question here कि वन पिक पॉकेटर, थोड़ा सा सब वीडियो ओपन करेंगे. वन पिक पॉकेटर बुद्धि युक्त मीन्स यू हैव टू स्टेबल एंड इन दैट सिचुएशन. तो जब पिक पॉकेटिंग करता है तब स्टेबल रहता है क्या वो? ही इज अ वेरी फिकल माइंडेड, फ्लक्चुएटेड. अरे मैं पकड़ा जाऊंगा, नहीं पकड़ा जाऊंगा क्या, इस तरह से. ओके, एंड the action are not peaceful. The action is a cruel karma. So it is not yoga. If you are in a balanced state while you are doing proper your own work with a great force, with a great attitude, that is you. Means you have to stay in a balanced state, your own mind or chitta, then you have to bring the excellence in that. Whatever the communication is there, if you are receptionist, if you are anything, कुछ भी रहो, आपको उसमें excellence लाना पड़ेगा. Now the second is युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः. This definition is very near to my heart because I am since last 10 years I am trying to implement this shlok in my life. For a person who is a moderate in eating and recreation, balanced in work and regulated in sleeping and wakefulness, his practice of yoga destroys all material miseries. देखिए, अति सर्वत्र वर्जयते, हठ प्रतिपिका में बताया है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह. तो जो भी अति है वो आपको दुख ही देगा. फिर आपका पैसे का लालच भी रहेगा तो वो दुख देगा. अगर बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है, दैट ऑल्सो गिविंग यू ट्रबल. समझो आपको बोला गया कि आप खाना खाएंगे, मीठा खाना खाएंगे. कल ही हमारा गुड़ी पाड़वा हुआ, तो उसमें हम लोगों ने समझो पूरी और श्रीखंड या मीठा जो है खीर हम लोगों ने खा लिया, और आपको बोला जाएगा कि आप 8 घंटा अभी सोना है. तो आप 8 घंटा सो पाएंगे क्या? नहीं सो पाएंगे. भले वो स्लीप, निद्रा, आपको नींद आपको मजा देने वाली है, आनंद देने वाली है, लेकिन वो अति में आ गई. अति सर्वत्र वर्जयते. वॉट एवर द एक्सेस, दैट इज अ पॉइजन.
सो यहाँ पे देखिए युक्त, युक्त मीन्स मॉडरेट. हाउ टू नो यू द मॉडरेट, हाउ कैन यू डिफाइन मॉडरेट? तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज गुड. यू हैव टू नो, you have to define that in every situation. While you are ahar, you are taking ahar inside from your senses, आंखों से, कानों से, टेस्ट, टच, जो भी है आप आहार कर रहे हो. आहार मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं, खाना तो है ही है, दैट इज ओके, वो तो एकदम इनिशियल लेवल के ऊपर है. यू हैव टू टेक द फूड इन अ मॉडरेट लेवल और मॉडरेट टाइप ऑफ फूड. एंड आहार पंच ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा भी आप आहार लेते हो, उसको भी आपको मॉडरेट करना है. देन विहारस्य, आपका मन देखिए 1 मिनट में लंदन चला जाता है, दैट इज विहार. तो कहाँ पे जाना है, क्या देखना है, कहाँ पे विहार करना है, योग में करना है या ग्रंथों में करना है या कुछ अलग से मटेरियलिस्टिक चीजों में करना है, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा. यू हैव टू मॉडिफाई, यू हैव टू मॉडरेट दैट विहार. युक्त चेष्ट से कर्मसु, आपको जो काम है वो भी मॉडरेट करना पड़ेगा. अभी कोरोना के सीजन में नर्स, डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि पूछो मत, खुद की हालत खराब हो गई है उनकी. तो ये आपको तकलीफ देगी. अगर आप ये ठीक से मॉडरेट करते हो तो योगो भवति दुःखः. आई एम दिस रिलेटिंग टू आयुर्वेदा. आयुर्वेदा में भी एक कॉन्सेप्ट है. सी योग क्या है? योग इज अ प्योरली साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. योग इज अ साइंस ऑफ टू नो योर ओन सेल्फ. मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है. बट आयुर्वेदा इज अ लाइफस्टाइल. आयुर्वेदा से आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए ये बताया है. ये ग्रंथ ऐसा है कि आपको कैसे रहना है, तो वहां पे भी यही बताया है. आयुर्वेद में आहार विचार देखिए, हित मुखम, आपको जो हितकारक है, आपको जो तकलीफ अस्वस्थता नहीं दे रहा है, आपको मन को स्वस्थता दे रहा है, ऐसा आहार करना है. द होल ग्रेन्स, फ्रेश काउ मिल्क, इट्स प्रोडक्ट्स, then honey, sugar candy, fresh vegetables, pulses, fresh seasonal fruits, water. एंड आयुर्वेद में एक और अलग विचार है, मीत भूकम, हीत भूकम, मीत भूकम, ऋतु भूकम. मीन्स what to eat, how much to eat, and food from honest means. मतलब अच्छे मार्गों में से आप कमा रहे हो क्या, ये भी बहुत जरूरी है. आप अगर बुरे मार्ग में से कमा रहे हैं तो आपको वो भी तकलीफ देगा. तो इतने सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अपने अपने आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी. दैट इज द मेन solution to your own stress. Whatever the stress coming in your life, you have to release the stress, or the upay is yoga only, the moderate lifestyle. Now this is the third definition of yoga. Tam vidyat दुःख संयोग वियोगम योग संज्ञत स निश्चयेन योक्तव्य योग निर्वनि चेतसा. मीन्स व्हाट, कि आपको अविद्या है, यू आर लिविंग इन अविद्या, यू आर लिविंग इन इग्नोरेंस. व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, यू डोंट नो. यू आर रिलेटिंग यू आर बॉडी, you are relating you are mind, you are relating with your own intellectual बुद्धि. आप ऐसे समझ रहे हो कि मैं मन हूं, बुद्धि हूं, मैं शरीर हूं, बट यू आर नॉट लाइक दैट. यू आर सतचित आनंद, यू आर तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, बट यू आर थिंकिंग I am feeling this dukkha because you are relating with your body and mind and बुद्धि. आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपका दुख निकल जाएगा. You should know the definition of yoga
as that which severs connection with the sorrow. आप वो दुख के साथ में आप रिलेट कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग योर ओन सेल्फ टू विद दैट दुख. मीन्स you are thinking your body, you are thinking your mind, you are thinking you are the बुद्धि. तो अविद्या है, अविद्या की वजह से आपको अहंकार है, और अहंकार अस्मिता होने की वजह से आपको अटैचमेंट है, अटैचमेंट होने की वजह से आपको, अगर अटैचमेंट से आपको पूरा हो रहा है, आपका डिजायर पूरा हो रहा है, तो यू वांट मोर, दिल मांगे मोर. If the desires are not fulfilled, then you will get jealousy, and after that jealousy you will feel I want to leave. Abhinivesha, avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha, the five kleshas are there. If you know the vidya, if you know the viveka khyati, if you know the discrimination power, you have the viveka, then you will destroy the whole dukkha that is given in this shloka. Now the next is the Patanjali Yoga Sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha. In this, yoga is a one word, chitta is one word, and vritti is one word, and nirodha is one word. There are four words. We are सर seeing वो प्रीवियस कहाँ से लिया था प्रीवियस श्लोका? Bhagavad Gita 6.23. ओके. Bhagavad Gita का. Now Patanjali Yoga Sutra. There are four words only: yoga, chitta, vritti, and nirodha. अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. What is yoga we are seeing? Tell me what is chitta. Tell me what is vritti and what is nirodha. 1 minute. Yeah, I am coming on that. So, if you are seeing one object or one subject or anything in front of you, you will circle that object in you. You are thinking, I want this, I am seeing this. After that object, you are seeing another object. The thought is there. You can say thought also, no problem. Then third thought is coming. Now the fourth coming. Like this, the modifications of vritti, the praman, viparya, vikalpa, smriti, and nidra. The five types of. Now nirodha. Nirodha आपको मालूम है. Restrain, controlled, hold. Okay. तो दिस टाइप ऑफ आपको ये करना पड़ेगा. योग चित्त वृत्ति बोलने के बाद इतना नहीं बताना है. योग चित्त वृत्ति निरोध. व्हाट इज मीन बाय योग, व्हाट इज मीन बाय चित्त, व्हाट इज मीन बाय वृत्ति. Because Maharshi Patanjali is the father of yoga, we have to know the clear cut concept of that yoga chitta vritti nirodha. Okay, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो आगे बढ़ू मैं, थोड़ा सा अंगूठा दिखा दीजिए ऐसा, तो मुझे भी थोड़ा बूस्टअप होगा. Yeah, thank you. Now we are going forward. Next is Yoga Vasishta. Maharshi Yoga Vasishta is a guru of Shri Ram. तो श्री राम जी जब वो गुरुकुल में थे तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज मीन बाय योग गुरु जी. तो उन्होंने बताया कि योग मीन्स मनः प्रशमनः उपायः योग इत्त विधीयते. Means yoga means is the technique which is pacify or equanimate your own mind. आपके मन को शांत करने की टेक्निक, शांत करने का एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो योग है. Now second one is very beautiful and it is related with our own life. The modern era में भी अभी देखिए 5010 साल पहले बताया होगा, मालूम नहीं कितने साल पहले बताया, लेकिन कितनी बड़ा उन्होंने डेफिनेशन किया है. संसार उत्तरणे युक्ति ही योग शब्देन कथ्यते. मीन्स you have to samatvam yoga uchyate, you have to excellence in your work, you have to do your own atma darshanam, you have to introspect, and whatever the trick is, you have to come out the problems. जैसे कोरोना के सीजन में
रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, मास्क लगाते हुए, लंबे से बात करते हुए, जो भी वैक्सीन है वो वैक्सीन लेके आपको उसमें से बाहर निकलना है। मीन्स मॉडरेशन आ गया है ना। रूल्स फॉलो करेंगे तो मॉडरेट हो गया। तो हमको तो रूल्स नहीं चाहिए, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सिग्नल, हेलमेट, तो रूल्स और रेगुलेशंस यूज करेंगे तो आप इस संसार के जो भाग दौड़ है, जो संसार का भव सागर है, उसमें से आपको ट्रिक मिलेगी कैसे बाहर निकलना है, हाउ टू गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, नुकसान होगा लेकिन 5% होना चाहिए तो बहुत अच्छा। अगर 10% हो रहा है तो यू आर गुड, अगर 5% हो रहा है तो यू आर बेटर, अगर 2%, 1% हो रहा है तो यू आर बेस्ट। जैसे मैंने पीछे दिखाया, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो वैसे ही आपको जो भी वर्क करना है, जो भी कर्म करना है, जो भी आपको चीजें करनी है, यू हैव टू डू योर excellence. The technique that enables one to overcome the difficulties of the worldly life is called yoga. Now the next is Kathopanishad. The Kathopanishad is telling us you have to control, you have to bring your own senses together and ज्ञानानि मनसः बुद्धिश्च न विचष्टते। ज्ञान के साथ में, नॉलेज के साथ में, मन के साथ में, बुद्धि के साथ में आपको हिलना नहीं है। मीन्स व्हाट? हार्मोनी बिटवीन योर ओन मन, बुद्धि एंड थॉट्स इन सेंसेस। जैसे इंद्रिय, मन, बुद्धि एंड नॉलेज, आपको इन सभी को साथ में लेके हुए हार्मोनी के साथ में तामाहु परमाम गति, परम गति को, अल्टीमेट स्टेट को आपको अचीव करने के लिए आपको ये जरूरी है। When the 5 sensory organs along with the mind become steady and intellect also recoils from various objects of senses and rest in the highest bliss, that state is called the highest and ultimate state is yoga, namely samadhi. So means what? Harmony between senses, harmony between mana, harmony between buddhi, harmony between thoughts. अगर ये तीनों भी अगर डिसऑर्गेनाइज रहेंगे, इनमें अगर हार्मोनी नहीं रहेगी तो क्या होगा? मन बोल रहा है ये करना है, लेकिन बुद्धि बोल रही है ये अभी नहीं कर सकते, अभी आप टाइम नहीं है ये करने का। इंद्रियों के साथ में आपने नॉलेज लेके मन आपके सामने, बुद्धि के सामने पेश कर रहा है, व्हाट इज योर डिसीजन, क्या करना है, जाना या नहीं जाना है। लेकिन मन बोल रहा है नहीं नहीं करते, बुद्धि बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं करते, अभी करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। अगर ये दोनों चीजें अलग अलग जगह जाएंगी तो डिसीज उत्पन्न होंगे, रोग उत्पन्न होगा, डिस्कंफर्ट होगा तो रोग उत्पन्न होगा ही होगा। नाउ दिस इज आई थिंक सो लास्ट नॉट लीस्ट, मेरा भी एक डेफिनेशन है, मेरा भी मतलब दिस इज माय परसेप्शन, वो हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। Maharishi Vyasa Bhashya tells us in the first sutra's commentary, yoga has been defined as a yoga samadhi. Means what? What is meant by samadhi? Anyone? Concentration. Concentration. The highest concentration. buddhi. Anyone? Samadhi. Is a samadhi. Now this is the courses offered by Government of India, assisted yoga therapists and yoga therapists. And yoga means संयम, योग मीन संयम। जैसे देखिए अभी योग मीन समाधि है, तो योग मीन संयम भी हो सकता है। संयम इज अ हायर लेवल, धारणा, ध्यान, समाधि, 3 कंपोनेंट्स इन दैट संयम। संयम मीन्स आपको धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ में करना है, दैट इज योग। ओके, मे बी यू आर नॉट एग्री, आई एम ओपन फॉर दिस। अगर आपका अगर कुछ वैल्यू एडेड है, वैल्यू ऐड करना है, यू कैन प्लीज, आई एम वेरी ओपन। अगर मुझ में कुछ सुधारना हो रही है, मुझ में कुछ एनहांसमेंट हो रहा है,
So I am doing Yoga Karmasu Kaushal.